ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਛ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਢੰਗ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਲੈ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਿਹੂਣ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਲੈ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਿਹੂਣ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਗ ਗੁਰ ਉਬਰੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਗ ਗੁਰ ਉਬਰੇ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣ। ਆਪ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੈਂ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸੋ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣ ਜੋ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਆਓ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਗੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
जिन्ना महाराज कहते जिनके चित कठोर हैं से बह न सतगुर पास। क्यों? उथे सच वरतदा कुड़ियारा चित उदास। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले सचियार सिख बैठे सतगुर पास। सच्चे ਜਿਹੜੇ सिख ਹੋਣਗੇ ना सतगुरु ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। तो सतगुरु महाराज ने फिर सानू समझाया कि सचियार बनन वास्ते किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टुट्टे पाल। तो महाराज ने फिर फैसला दिता कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो ये सिद्धांत ये विधि जो धुरों लिखी हुई है ना कि हुक्म दे विच चलन नाल ही एक कूड़ दी पंध टुटेगी। फिर महाराज ने अगली पौड़ी विच असीं सांझ कीती सी कि सवाल आ जांदा है हुक्म की है। तो महाराज ने हुक्म दा सारा खुलासा कीता सी कि हुक्म विच ही सारे आकार ने, हुक्म विच ही बंदा मरदा है, हुक्म विच ही जमदा है। ये सारी पौड़ी हुक्म दी कीती सी। पर जदों किसी नूं हुक्म दी परमात्मा दी उस होंद दी समझ आ जाती है, समझ आती है, अंत नहीं मतलब कि परमात्मा दे हुक्म बारे सानू नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। सतगुरु दे ज्ञान प्रकाश दे अंदर जद ये पता लग जाता है हुक्म की है तो उस वेले फिर अंदरों जिहड़ी मैं वे ना वो निकल जाती है। महाराज ने फिर फैसला दे दिता कि हुक्मे दे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझै तां होमै कहै ना कोई। फिर होमे नहीं रहिंदी। ते जद किसी दे अंदरों होमे निकल गई उस वेले फिर की करता है, फिर मैं नहीं कहता, फिर वो तू कहता है। देखो जब तक मेरे अंदर मैं रहेगी ना मैं किसी दे गुण नहीं गावांगा, मैं अपने गुण गावांगा। तवज्जो देना क्योंकि ये लड़ीवार है। मैं तां इस नूं कह रहा कि एक पौड़ी दूजी पौड़ी दे नाल कनैक्टिड है। तो जे असी पिछले नूं मजनून नूं समझ लईए तो अगली पौड़ी समझण विच औखियाई नहीं होएगी। मारे कहते ने जदों अंदरों बंदे विचों मैं निकलती है ना फिर उहदे दा चित्त करता है कि मैं किसी दी वाह करा। फिर वो की वेखदा है, फिर वो परमात्मा दा आश्चर्य ये नज़ारा वेखदा है। वो वेखदा है बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया। फिर वो उहदे मुखों की निकलता है वाह गुरु, वाह गुरु। क्यों? क्योंकि जदों मैं निकलती है ना उदों फिर तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखूं तत तू। भगत रविदास भी तो कहते हैं ना जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब तक मैं सी ते तद तक तू मेरे हिरदे विच नहीं आया क्योंकि मैं नूं मैं जगह दिती हुई सी। पर जदों मैं नूं कढ के मैनूं पता लग गया कि ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਆਏ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो गुरु नानक पातशाह तीजी पौड़ी विच यही कह रहे हैं और उसनूं किस तरह कोई गा रहा है, किस तरह जद किसी नूं समझ आउंदी है वो फिर परमात्मा दे गुण किस रूपां विच गा रहा है। सतगुरु ने इस पौड़ी विच उस दा जिक्र कीता है। तो प्यारिओ आओ गुरु साहब की कह रहे हैं? गावै को ताण होवै किसै ताण। ताण हुंदा है बल, ताकत, शक्ति, पावर, इन्नियां चीज़ां जो मर्जी समझ लो। ताण मिस बल। ते गावे नहीं पढ़ना, गावै दुलावां ने। कई बारी पढ़न विच ना असीं मिसटेक कर जाने हां ते अर्थ दा अनर्थ हो जाता है। तो महाराज इत्थे समझा रहे ने कि गावै को ताण होवै किसै ताण। बई उस परमात्मा की शक्ति नूं कौन गायन कर सकता है? जिहदे उत्ते परमात्मा अपना बल दिंदा है, उन्होंने बल बख्श दिंदा है।
देखो अपने आप तो मैं भी नहीं गा सकता तो तुसी सुन भी नहीं सकते, या तुसी गा नहीं सकते मैं सुन नहीं सकता। ये उहदा बल वरत रहा है ते तां ये ब्योंत बनी है। देखो अंदरों सत्या निकल गई, ताकत निकल गई, पावर निकल गई, बंदा नहीं बोल पाएगा। बोलन वाली की है? अंदर जिहड़ी शक्ति है ना वो सानू बुला रही है। कई बारी बंदा बीमार हो जाए, शरीर करके ढिला हो जाए तो वो बोलन तो भी रह जाता है। डॉक्टर कहता ठीक हो जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि बीमारी करके इनू वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है। क्यों? क्योंकि उहदे अंदरों जिहड़ी सत्या सी ना वो बीमारी ने खो ली है। भाव की पावर उस परमात्मा दे हाथ विच है। ये सूरज ही ले लो, सूरज अपनी मर्जी नाल थोड़ा निकल रहा है कि मेरी मर्जी है, मैं आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं आलस है, चल अज नहीं मैं निकलदा, अज मैं 6 बजे की बजाय 10 बजे निकल जाना वा। ऐसा नहीं है। महाराज कहते नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। महाराज कहते तेनू सूरज नमस्कार करना, सूरज तेनू नहीं कर रहा, जिन्हें तेनू बनाया है। तू तो अपनी मर्जी नाल चल ही नहीं पा रहा। तेनू पिछों वो लाइट दिंदा है, वो पावर दिंदा है, वो रोशनी दिंदा है, ते तू फिर उहदे हुक्म विच चल पैना है, चल पैना ना। कदी दसो, शायद तुहाडी जिंदगी या मेरी दसो कदी भुल गया होवे सूरज कि अज निकलना ही नहीं, चलो रात ही रहन दो। मैं तो नहीं देखा, शायद जे तुसी देखा हो तुहानू पता होएगा। हर चीज उस हुक्म विच बनी हुई है। तां ही महाराज कहते हैं गावे इंद इंदासन बैठे देवतियां, गावे मतलब सारे उसनू गा रहे हैं। गाण तो भाव की है, उहदे हुक्म विच चल रहे हैं। जे समय सिर निकल रहा है ना तो इट मीनस वो उसनू गा रहे हैं, इस रूप विच गा रहे हैं। तो गुरु साहब कहते ने अपनी मर्जी नहीं वो चलाते, उन्हां विच कोई आलस भी नहीं है। हाँ, इत्थे मनुख नूं थोड़ा जिहा खुला छोड़ दिता है, तू उठ या ना उठ ये तेरे हाथ विच है। पर चंद्रमा, सूरज, नदियां, ये सब उहदे हुक्म विच ने। पै विच पवन वहै सद वाओ, पै विच चलै लख दरियाओ, पै विच अगन कड्डे वेकार, पै विच धरती दबी पार। ये सारा सवारी पढ़ी था, पै विच सूरज, पै विच चंद, को करोड़ी चलत ना अंत। ये सारे उहदे पै पाव उहदे मतलब कि हुक्म ही चल रहे हैं, भाणे विच रजा भी चल रहे हैं। एक मनुख ही अपनी मर्जी नाल उठदा है ते अपनी मर्जी नाल जागदा है। इस करके जे तू सूरज नूं वेख के बई जे वो टाइम नहीं बदल रहा, वो हुक्म अनुसार चल रहा है, तो फिर तू क्यों नहीं उठन च देरी कर रहे हैं। तो महाराज इत्थे इस तरह का विचार दे रहे हैं कि गावै को ताण होवे किसे ताण। जिसनूं रब वो ताकत देता है तो फिर वो ताकत नाल वो काम कथन करता है। अगे महाराज कहते ने गावै को दात जाने निशान। कई ना गावे को दात, इत्थे रुक के थोड़ा जिहा विश्राम हल्का। गुरबाणी च 2 तरह के विश्राम ने, एक थोड़ा ज़्यादा रुकना हुंदा है, एक थोड़ा जिहा घट दे के। गावे को दात जाने निशान, बिल्कुल लाइट जिहा रुकना है। इत्थों भाव ये लगता है कि कई ना उस दियां दातां नूं वेख के गाउंदे ने। बहुत अच्छी गल है। जाने निशान, निशानी समझ के पता लग जाता है। देखो किसी कलोनी विच गुरुद्वारा होए ना तो सानू दूरों पता लग जाता है कि इत्थे गुरुद्वारा है। की कारण है? क्योंकि वो निशान साहब इस गल का प्रतीक है कि कई को तो कई दूरों ही पता लग जाता है कि इत्थे गुरु का द्वारा है, गुरुद्वारा है, धर्मसाल है। क्यों? वो निशान तो।
जद असी अपने बच्चे घर बाहर दातां देखने आ ना, तो साडा की उस टाइम मन हुंदा है, ये अध्यात्मक बंदियां दी गल है। फिर उन्होंने गाउंदे ने दातां नूं वेख के। मैं अक्सर जिक्र करना, बच्चों नूं वेख के जे रब चेते आ जांदा है तो बड़ी वड्डी गल जे। ते बच्चों नूं वेख के जे बच्चे विच ही असीं लुत्फ हो गए तो ये माया की पकड़ है, रब तो दूर हो गए हैं। जिहदी बाबत हुणे ही पढ़िया ना, बुजुर्ग बाबा जी ने कहा, अमरदास जी ने, ये माया जित हर विसरै मोह उपजे भाव दूजा ला। एवें स्टॉप दे के मोह उपजै भाव दूजा लाया, ਉਹਦੇ अंदर मोह उपजदा है तो दूजा भाव लग जाता है। भाव दूजे भाव तो मतलब ਜਿਹੜੀ चीज़ परमात्मा के नाम नूं विसार के, भावें धी पुत्र ने, माया वे, भावें कोठियां ने, भावें संसारिक ਉਹਦੇ ने, कुछ भी कह लो, जदों परमात्मा विसर गया वो माया बन गई। जे बच्चों नूं वेख के, घर नूं वेख के तैनूं उस परमात्मा की चेते नहीं आया तो समझ लै तेरे अंदर माया की खेड वरत रही है। तो महाराज इस तरह इत्थे ख्याल दे रहे ने कि गावै को दात, कोई उहदियां दातां वेख के गाउंदा, वाह परमात्मा मैं इस लायक नहीं सी, मैं घर विच वड़ा। हे परमात्मा कई ऐसे भी ने जिन्हां कोल छत नहीं है, कई ऐसे भी ने ਜਿਹੜੇ बिना छत तो, तुसी देखो भिखारी कितने ने रोडां ते एवें सुत्ते हुंदे ने, देखदे हो ना तुसी, कई वारी बहुत बंदे सुत्ते हुंदे ने। तुसी घर विच वड़न तो पहला शिकवे ते बाद विचों करो वाह गुरु कह दो कि भाई अचरज है परमात्मा, पता नहीं तू चाहें तो मैनू भिखारी भी बना सकदा सी, पर मैं तेरा घर वेख के, अपने बच्चे वेख के, माता पिता देख के, वो निशानियां तेरियां देख के ना, गावे को दात जाने निशान, मैं गा रहा। कोई इस तरह गांदा है। अगों महाराज कहंदे ने गावै, इत्थे मैं बार बार रिपीट कर रहा, अक्सर बाणी पढ़दे असीं गावे ही कहने आ, नहीं गावै। जे तुसीं गुरबाणी पढ़दे आ, शब्दां दे दर्शन करोगे ना, तो उहदे विच दुलावां ने, ते दुलावां नूं दुलावां दे रूप विच ही पढ़ीए तो ज़्यादा बैटर रहेगा। सो महाराज इत्थे कह रहे ने गावै को, इत्थे रुक के, गुण वडियाइयां चार, चार इत्थे चार तो भाव ये ना लेना कि गिनती का चार है। देखो जिथे भी गुरबाणी विच गिनती दा वास्ते आया होएगा ना, उत्थे सिहारी नाल होएगी, एक दे अगे कक्के नूं सिहारी होएगी, उहदा भाव होएगा कि गिनती वाला एक है। तीन होएगा ना, नन्ने नूं सिहारी होएगी। चार होएगा ना, रारे नूं सिहारी होएगी। ये गल समझण वाली है। उत्थे असीं समझ जावांगे कि चार पदार्थ जे को मंगै, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इत्थे चार, वो चार गिनती का वाचक है। पर इत्थे मारे कहते ने चार, रारा मुक्ता है, रारे नूं कोई सिहारी बिहारी नहीं लगी, औंकड़ दुलावा कुछ नहीं लग्या। मारे कहते ने गावे को गुण वडियाइयां चार, चार हुंदा सुंदर। ये चार तो भाव है कि बहुवचन, प्लूरल है। मारे ज्यादा जे चार दे थले औंकड़ होवेगी, एक वचन सिंगुलर होएगा ते वो पुलिंग होएगा। तो महाराज कहते पे ने कि गावे को गुण वडियाइयां चार, कई उहदियां ना सुंदर वडियाइयां, मतलब कि बहुतियां कह लो, सोहणियां कह लो। चार दे अगर मुकता है ना, गुरबाणी देखो थले औंकड़ आनी, अगे चल के एक औंकड़ आएगी भी। ये व्याकरण का संकेत है। हर जगह नहीं पढ़नी होंदी औंकड़, तो जे औंकड़ पढ़ने वाली गल होंदी ना, तो सतनाम दे थले मम्मे थले भी औंकड़ आती, सतनामू नहीं पढ़ना सी। वो सानू व्याकरण दे नाल गुरु साहब सानू समझा रहे हैं। इत्थे कुछ कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं गुण वडियाइयां चार, कई उहदे गुणां दियां वडियाइयां, उहदियां सोहणियां वडियाइयां वेख के ना, ते उहदा वर्णन करदे ने, उहनूं गाउंदे ने। बड़ी अच्छी गल है। किते हिल स्टेशन चले जाइए, नज़ारा वेख के, वो वडियाइयां वेख के कि परमात्मा तू किस किस रूप विच है।
तो कितना सुंदर है। भगत भाई वीर सिंह जी कोई आफिस विच आया, उन्होंने बैठे हुए तो उन्होंने क्या कोई बुक चाहिए, वो दूजे कमरे विच गए। कमरे विच गए तो उत्थे गुलदस्ता पिया सी फुल्लां दा, बड़ी अध्यात्मक सोच सी। जद बुक लैन लगे तो नज़र पै गई फुल्लां ते, तरह तरह के फुल सन ते बिल्कुल ना विस्माद हो गए। विस्माद समझने ना कि दुनिया की खबर तो परे हो गए। कहते रब्बा तू इस रूपों में भी है, तेरा कितना सुंदर रूप है। देखो जिन्हें जदों अंदर सोच चंगी हो जाएगी ना, सानू हर बंदा रब ही नज़र आएगा। ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है। ते वो वेख के ते कितना समा फुल्लां दे नाल ही गल्लां करते रहे, क्योंकि बलिहारी कुदरत वसिया, रब तो फुल्लां विच भी वसिया होया है। एवें नहीं किसी ने पूछा फुल तू धन है, तू गुरु ग्रंथ साहिब दे या होर पीरां फकीरां के नामे नाम जपण वालियां दे तू गले विच पैनी है। ते फुल ने बड़ा सुंदर जवाब दिता, कहंदी मैं एवें नहीं पै जांदी, मन्नू नकीली जी ना सूई खोब के मेरे सीने दे विचों परो के ना ते मन्नू हार पराया जांदा। मैं एवें नहीं बन गई, मैं अपना आप वारिया है, मैं एवें शोभा नहीं बन गई, मैं एवें खूबसूरत हाँ, पर जे मैं गुरु दे चरनां विच आउण वास्ते मैं अपना आप वारिया है। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। मैं अपने आप वार के आई हाँ। ते बाहर बंदे बैठे ने, ते भाई वीर सिंह जी कहते ने भाई साहब की हो गया इन्नी देर? ते अंदर जाके देखा तो फुल्लां नाल ही गल्लां कर रहे। ते आम आदमी सोचे इन्हां दा दिमाग ठीक नहीं होएगा, पर रब दे प्यारे रब दी कुदरत नाल भी गल्लां कर लैंदे ने। तो महाराज कहंदे ने गावे को गुण वडियाइयां चार, इत्थे पढ़न विच चार ही आएगा, भावें जे सियारी हुंदी तां भी चार आना सी उचारण, बट ये रर्रा मुक्ता है, सानू अर्थ आपे ही पता लग जाते हैं कि सोहना है, सुंदर है, और यह विशेषण है इहदा चार। तो यह बहुतियां की गल हो रही है, मतलब बड़े मतलब कि ये सोहने ने ज़्यादा। गावे को विद्या विखम विचार, कई विखम बड़ियां औखियां डिफिकल्ट, बड़े ग्रंथ कई डिफिकल्ट भी है जे। ਇਹ वेद ने जिन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ वेद ने, शास्त्र ने, ज़्यादातर संस्कृत च ने, आम आदमी पढ़ नहीं सकता, बड़े औखे ने। ये तो गुरु साहब का साढ़े ते तरस है, भला है जो गुरमत की बाणी देखो, नहीं तो आम आदमी साढ़े वर्गे मूर्खों कोलों वो अर्थ करवा रहे हैं। संस्कृत के अर्थ भी हाई माई कोई विद्वान ही ब्राह्मण लोग ही करते सन, हुण तो वो भी प्रथा खत्म हो गई है। महाराज कहते ने कोई उसनू उहदी विद्या नू, बड़ी औखी विद्या नू, बड़े बड़े औखे ग्रंथ ने जिहड़े आम बंदा पहुँचता भी नहीं उन्हां कोल। महाराज कहते ने उन्हां दी विचार करके परमात्मा नू गा रहा है। वो एक ढंग है, तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ रहे हो, इट मीनस तुसीं भी गा रहे हो। कोई ये नहीं है कि गाना खाली मैं रसना तो कीर्तन कर रहे हैं तो गा रहे हैं, नहीं। जब तुसीं परमात्मा के बारे सोच रहे हो ना, कोई शब्द बारे, वो भी तुसीं गा ही रहे हो, क्योंकि परमात्मा की गल कर रहे हो ना। तो महाराज इत्थे यही कह रहे हैं, गावै को विद्या विखम विचार, बड़ी औखी विद्या की विचार करने वाले इस रूप में भी गा रहे हैं। गावै को साज, इत्थे हल्का हल्का रुकना है। गावै को साज करे तन खे,
ਉਹ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਜਨਾ में जिन तू साज सवार ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ में जिन्हें ਉਬਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਵਾਹ! ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਮੌਜ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕੋ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਹੱਥ ਇਹ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਇਸ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਤਨਾ ਕੋਲ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ, ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਸੋਚ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਰ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਅਨਕ ਪੜਦੇ में परदारा संग फाकै, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा ढाकै। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਉਹ ਦੂਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ।
रब साडी हर एक एक्टिविटी देख रहा है, वाच कर रहा है। चित्रगुप्त साडा हर एक लेखा लिख रहा है। मैंने गल याद आ गई इत्थे, किसी ने कहा दो शरीर सामने सन, गल यही चल रही सी कि रब दूर है कि नेड़े वे। उन्होंने कहा यह गल बाद विचों करना। नाम जपण वाले कहते हैं बई एक कबूतर जे दोनों ने की कबूतर दे दिता, उत्थे मार के आओ जिथे कोई ना वेख रहा हो। दोनों चले गए। जिहड़ा मेरे वर्गा सी अज्ञानी, जिन्हों समझ नहीं सी, वो घर गया, इधर उधर कमरे च वेख्या कोई नहीं, तो मार के 10 मिनटां विच उन्हां महापुरखों को ले आया। कहंदा जी मैं मार आया, तुसीं कहा सी जिथे कोई ना वेखे तो मैं मार आया, ए देखो उत्थे किसी ने नहीं वेख्या। वो कहन लगे तू रुक जा, दूजे नूं आ लैंदे, उहदी भी गल सुन लैंदे आ। वो दूजा सवेर दा गया, शाम नूं आया, कबूतर हत्थ विच ते मरिया नहीं, जिंदा। महापुरखों ने सुभावक पूछ लिया, भाई तू गया में, तैनूं कोई ऐसी जगह नहीं मिली जिथे कोई ना वेख रहा होवे? कहंदा जी मैं ना पहला पहाड़ां विच चला गया। मैं कहा ते एकांत जगह तुसीं गई जिथे कोई ना वेखे। मैं जब पहाड़ां ते गया तो मैं की वेख्या, मारन लगा तो उत्ते ना इल देख रही सी। कहंदे मैं क्या भाई नहीं, तुसीं कहा सी कोई ना वेखे। मैं इहनूं ना कंदरां विच लै, गुफा विच लै गया। हुण गुफा च लै गया तो उत्थे हनेरा सी। मैं मारन लगा तो मैं वेख्या, तुसीं मैनूं तुहाडा बचन याद आ गया, कोई ना वेखे तो कबूतर तो मेरे वल वेख रहे। कहंदे ने मैं ना रुमाल कढ के ना कबूतर दी ना अखां विच पट्टी बन दित्ती। कहंदे मैं मारन लगा। देखो जदों कोई गल नाम जपण वाला करदा उहदे विच कुछ गहराई हुंदी है, तो वो जिहड़े इस मार्ग चलते ने वो उन्हां दी रमज समझ जाते हैं। जद मारन लगा तो फिर याद आया, यार मैं तो देख ही रहा। उन्होंने कहा कोई भी ना देखे। कहते ने मैं भी पट्टी बन ली अखां ते। हुण जद मैं मारन लगा, मैनूं अंदरों आवाज़ आई, ओए भलिया तू जिन्ना जिन्नी क्रिया कर्म कीता ही ना, तू दूर कित्थे जा रहा? मैं तो वेख ही रहा ना। कहते ने फिर मेरे हथों ना छुरी छुट गई तो मैं ले आया। मैं क्या महापुरखों कोई ऐसी जगह नहीं जे जिथे रब नहीं देख रहा। गावे को वेखे हादरा हदूर, वो बिल्कुल कोल है। जे महसूस कर ले रब की है, कोई पूछे रब की है, रब फोटो है, मूर्ति है, कोई नहीं। रब शब्द है, रब महसूस करो जी। अज मैं इत्थे गया, कुदरती मेरी मैनू संगत मिल गई, ये रब जी। मैं गया उथे मेरा दिल नहीं सी, पर मेरा मन जुड़ गया शब्द दे विच। एक ही है, रब है। तो मारे कहंदे ने रब दूर नहीं जे। रब देखो गुरु नानक पातशाह नूं नहीं पहचान पाए। ये 6-7 रीकी इकट्ठे ना तप किया। राय बलौर ने, नानकी ने, गुरु नानक पातशाह ने, पिता कालू ने, माता त्रिपता ने, ये सारे पहले पिछले जन्म के रीकी सन। गुरु नानक पातशाह भी सारे ये तप कर रहे सन। गुरु नानक पातशाह दे वाहिगुरू, गुरु नानक पातशाह में मूँह निकल गया वाहिगुरू, ये सारे रीकी सन। ते जदों रब प्रगट होया ना, शिले कट रहे सन। शिले हुंदे ने जिस तरह तप हुंदा है, जिस तरह पानी दे विच खड़े होके नगन ते कई समा तप करना, बड़े कठिन कठिन तप हुंदे सन। तो उस वेले रब प्रगट होया तो उन्होंने कहा जी की मंगदे हो? कहंदे ने असीं चाहुंदे हां कि रब साडे द्वारे खेडे। ध्यान देना। तो रब ने कहा जाओ, की कहंदे तथास्तु, जा तुहानूं मिल गया। एक गल तो ले ली। हुण रब आ के खेडिया, गुरु नानक दे रूप विच आ गए, पिता कालू दे, भैन नानकी दे,
नहीं पहचान पाए। भैन नानकी सब तो पहला पहचानी। उन्हें कभी वीर नहीं किया, उन्हें कहा मेरा रब है। अक्सर नाम जपण वालियां नूं ना दुश्मन, घर दे ते जिहड़े सरीके वाले ने वो नहीं पहचानते, बाकी सब पहचानते हैं। नहीं पहचान पाए, भैन नानकी पहचान ले। तो फिर रब नूं उन्होंने सारिਆਂ ने किया जी लास्ट जो पिता कालू ने चंड भी मारती, हालांकि मंगिया सी कि रब मेरे दुआरे आके खेडे, तो रब ने कहा, रब नूं पिता कालू ने कहा तुसी किया सी रब किते रब ते खेडिया मैं, कहंदे ने तुसी मंगिया ते सी पर पहचानन वाली अख थोड़ा मंगी सी। जे रब नूं पहचान लिया, जिन्हें पहचान लिया भैन नानकी ने, जो पिता कालू पहचान लिया ना, उही हत्थां नाल चंड मारी सी। ते इतिहास च आया कि पिता भी पैरी पै गया। गुरु नानक पातशाह कहंदे नहीं पिता जी तुहाडी ये जगह नहीं है, ये गुरु नानक दी निमरता है। तो जिथे रब नूं मंगीए ते रब नूं पहचानण वाली अख भी होवे, वो टपला खा गए, नहीं पहचान पाए। पर जदों पहचानिया राय बुलार पहचान गया। उन्होंने कहा कालू एक गल मेरी याद रखी, वो पटारी सन, कहने गल याद रखी कदी नानक नूं ना कदी अज तो बाद तू चंड नहीं मारनी, जे तैनूं जिन्ने पैसे हो मंगे भावें तू मेरे को लै जा, पर मेरे इस गुरु नानक नूं कदी कुछ ना कहीं। पहचान लिया राय बुलार ने। सो मैं गल इत्थे कर रहा सी कि गावे को वेखे हादरा हदूर, वो बड़ा ही नेड़े नेड़े है, दूर ना जाना। कथना कथी ना आवे तोट, कथना बयान करना, एक्सप्लेन करना, जिस तरह असीं आपस में बैठ के कथन कर रहे हैं ना, ये जिन्नियां गल्लां महाराज ने कीतियां ना, कहंदे ने इन्हां दी गिनती है ना कथी ना आवे तोट। वो जिन्ने भी ने ना इन्हां दी कमी कोई नहीं, पता नहीं कितने ही बंदे कर करके चले गए ने, कर भी रहे ने, करनगे भी, इस परमात्मा नूं कथन करनगे। वो कौन कौन ने? कथ कथ कथी कोटि कोट कोट करोड़ां ही। देखो कोट भी अखर 3 रूपां विच आउंदा है। यह टैंके नूं सिहारी है, यह व्याकरण का, उन्होंने कोटि नहीं पढ़ना सी, कोट पढ़न तीनों कोट होणगे, टैंका सिहारी, टैंका मुक्ता ते टैंका औंकड़। इत्थे टैंके नूं सिहारी है, इट मीनस करोड़ां की गल हो रही है। जिस तरह असीं पढ़ने हैं ना, कई कोट होए पुजारी, कई कोट, यह सारे अष्टपदी पढ़ने। एक हुंदा टैंका औंकड़ लगी हुंदी है, वो एक वचन है, सिंगलर है, नाउन है। उसदा मतलब हुंदा किला। लंका सा कोट समुंद सी खाई, तै रावण घर खबर ना पाई। उत्थे कोट टैंके नूं सिहारी है, इट मीनस एक किले की गल हो रही है। जे टैंका मुक्ता होएगा तो फिर किले होणगे, पढ़न विच तीनों कोट आणगे। तो महाराज कहंदे ने करोड़ां ही कथ कथ के चले गए ने, अंत नहीं फिर भी पाया किसी ने। तो अगे महाराज कहंदे ने देंदा दे लैंदे थक पाहे, लै लै के ना थक गए। कितना कुछ असी लै बैठे हैं, हार के असी चले गए। फिर साडे बजुर्ग कित्थे तैंडे मापियां, जिन्नी तू जाना होए तै पासों लद के तू अजे ना पतने होए। किन्ने लै लै के ना थक के संसार विचों चले गए। देंदा दे लैंदे थक पाहे। मारे कहंदे ने कदों तो? जुगा जुगंतर खाही खाहे। जुगा तो मतलब किन्ना सदियां तो, सदा तो ही कह लो, जुगा जुगंतर भाव, जुगा दे अंतर भाव सदा तो ही परमात्मा दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, असी खाई जा रहे हैं, खा खा के जाई जा रहे हैं। वो देंदा रहा है, असी मंगते रहे हैं, वो थकिया नहीं, असी थक गए, असी चले गए। पर महाराज कहंदे ने ये सब की है? हुक्मी हुक्म चलाए राह। इत्थे राहो नहीं पढ़ना, मनु खिमा कर देना। जिथों दास ने संथ्या लई है ना, उत्थे ये समझाया जाता सी, ये विशेषण है, हा हाए नूं औंकड़ है। ये एक वचन की गल हो रही है। इनू मैं थोड़ा होर सौखा कर लेना।
मैं दुनियावी उदाहरण दे के गल शायद साड़ी पकड़ विच आ जाए तो शायद असी अगों ना पढ़ीए। हुक्मी हुक्म चलाए राह, सारे उहदे हुक्म दे विच चल रहे हैं, राहु नहीं पढ़ना। क्यों? मैं किसी दे घर गया तो वह राह विच खड़ा सी, कहने ना कदी क्या वे राहो विच खड़ा सी? नहीं। इत्थे एक वचन नाउन, मैं कहां पुलिंग दी, नाउन पुलिंग दी गल हो रही है। ये सिर्फ व्याकरण नाल संबंधित है। जे पढ़ना होंदा ना एहो भी नहीं पढ़ना। तुसी ध्यान देना, जपजी साहिब विच अगे भी आएगा धर्म खंड का एहो धर्म, उत्थे एहो पढ़ना है, क्योंकि हाए नूं होड़ा है। तो जे होड़ा ना होए तो फिर यह पढ़ना है। तो महाराज इत्थे कह रहे हैं हुक्मी हुक्म चलाए राह, सारे उहदे हुक्म अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जितनी भी हुण विचारां होईयां ने ना, सब उहदे हुक्म दे बंधे हुए हैं। तो महाराज खीर विच फैसला दे रहे हैं, नानक मोहर ला के कवि छाप दी मोहर है, नानक कक्का मुक्ता है। असीं पढ़ बैठे हैं ना कि नानक 4 वारी अखर आया है। तो नानक विगसै, विगसे नहीं पढ़ना, विगसै, विगसे होंदा खुश हो जाना। वो परमात्मा खुश होंदा है, बेपरवाह है, उन्होंने किसी की परवाह नहीं है। सानू तो सवेर होंदी है ना, एक सवान दोए सवानी नाल भलके पूंके असी सवेर तो होंदियां ही सानू चिंतावां शुरू हो जांदियां ने। एक लोभ रूपी कुत्ता ते 2 कुत्तियां, आशा ते तृष्णा, बई यह काम करना है, ये चिंता ने, ये मैं इत्थे काम ते जाना है, मैं जॉब ते जाना है, मैं करना। सवेर होंदी है ना, चिंतावां साडे विच लगियां ने। परमात्मा इतना सिस्टम चला रहा है ना, उन्होंने चिंता नहीं जी। तां ही मारे कहते नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है। देखो असी घर चलाने ना, एक घर के सिस्टम नूं चलाउण वास्ते ना कितनियां फिक्रां लगियां होंदियां ने। कोई नाराज ना हो जाए, हैं बच्चे का नाश्ता ना रह जाए, सस सहुरा ना कह देन, कितनियां चिंता ने, कित्थे माया घट ना आ जाए। सवेर होंदी है सानू टेंशन, पर परमात्मा इतना वड्डे परिवारां नूं करोड़ां अरबां कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, पर उहदा सुभाव की है? महाराज कहंदे नानक विगसै बेपरवाह, वो खुश रहिंदा है ते बेपरवाह है, उन्होंने किसी की वो चिंता नहीं लांदा। वो कहंदा परमात्मा मोह च रहिंदा है। सोमा भाई सोमा आया सी ते महाराज ने वर दिते, गुरु रामदास पातशाह ने, कहंदे सोमिया तेरी जिहड़ी वटक है घटी क्यों जा रही है? महाराज रोज़ आके वटक ले लैंदे सन। कहंदा मैं गरीब हाँ ना, तो मेरी वटक घटनी है, मैं जिन्ना बनांदा सी तुसीं आंदे हो मैं तुहाडी झोली पा देना, तो हुण मैं गरीब है, तो दिन ब दिन पहले दिन 50 पैसे सेल सी, फिर 40 रह गई, फिर 30 रह गई। तो महाराज ने उत्थे वर दिते सन, भाई सोमा शाह, शाहां दा शाह ते बेपरवाह। बई शाह होएगा, शाहां दा भी तू शाह होएगा, पर बेपरवाह होएगा। भाव कि तू इस माया दे शाह दे नाल चमड़िया नहीं होएगा। तेरी जिहड़ी शाह वाली है ना, वो तेरे हिरदे विच नहीं बैठी होएगी, तेरे कोल माया होंदिया ना बेपरवाह होएगा। अज भी उन्हों की अंश चलती पई है। आप जानते होगे जिहड़े शाह जी इत्थे तुहाडा मॉडल टाउन, उन्हों का डेरा भी है अशोक, हाँ जी अशोक, ये 12वीं 13वीं वही भाई सोमे शाह तो चल रही है कि तू हमेशा शाह ही रहेगा। तो शाह दे नाल बेपरवाह वर्ड बोलिया ना जिहड़ा गुरु रामदास जी ने, ये बड़ी वड्डी गल जे, ये समझण वाली है। अमीर होना माड़ा नहीं जे, अमीर होके अमीरी हिरदे विच आ जानी वो माड़ी जे। अमीर होके बेपरवाह हो जाना कि रब्बा आ गया तां भी खुश है, चला जाएगा तो तां भी गम नहीं है, इनू कहंदे ने बेपरवाह। तो गुरु महाराज अज फैसला दे दिता है कि वह परमात्मा ओ जे उहदे नाल लगांगे असीं भी बेपरवाह हो जाएंगे, फिर आरे भी चल जाएंगे तां भी, फिर घर विच घट वध हो भी गई तां भी कुछ नहीं। तो महाराज कहंदे नानक विगसै बेपरवाह, वो सदा खुश रहिंदा है, बेपरवाह है। अरदास करो, दास कूकर दी भी करो कि ये चीज़ां साडे हिरदे विच भी वस जान, असीं भी उहदे हुक्म नूं पहचान लईए, समझ लईए। समझण तो बाद फिर असीं उहदे कायदे अनुसार चलीए, मर्यादा विच चलीए, फिर असीं भी सदा खेड़े विच रवांगे। भुल्लां चुकां दी खिमा, बेअंत भुल्लां गलतियां होईयां ने, उह दास दियां ने, खिमा कर देना। चंगा वचन गुरु दा लगे, हिरदे विच वसाओ, ते लोक सुखी परलोक सुहेले हो जान।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।